So, my today's topic is explain the limitations of GDP as an index of economic welfare. It means there are many aspects in the economy that have lead to increase in GDP. So whether it is necessarily that when GDP increases, the economic welfare also increases? So it is not necessary. When GDP increases, economic welfare can increase or even can decrease. This is the question. So limitations में हमें यही explain करना है. So whether GDP increases, is welfare also increase or not? So first of all, I have written some concepts. Look this. Gross domestic product is the value of all final goods and services produced within the country during 1 year. It is quantitative concept and does not represent the qualitative aspect. Most important point, your GDP is based on quantity, not quality, by the economy. The various limitations of using GDP's index of welfare as follows. So first one is distribution of GDP. So look, if a rise in GDP may not lead to rise in economic welfare. If the distribution of GDP is unequal, इसका मीनिंग अगर आपकी इकोनॉमी में जीडीपी अनइक्वल है, मींस कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास पैसा कम है, तो उस केस में जीडीपी से वेलफेयर नहीं राइज होगा. दिस इज बिकॉज द राइज इन जीडीपी may be concentrated in the hands of very few individuals. क्योंकि कुछ लोगों की इनकम राइज होने से आपका जीडीपी राइज हो गया. It doesn't matter that the welfare of all the people will increase. So for rest level income may be low. तो अब इसमें समरी ये होती है, अगर इकोनॉमी का इक्वल जीडीपी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो आप कह सकते हैं कि आपका वेलफेयर राइज होगा. और अगर अनइक्वल है तो आपका वेलफेयर राइज नहीं होगा, बल्कि वो डिक्रीज हो सकता है. अब ये हमारा कंसेप्ट था. अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं. जो एनसीईआरटी में लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं. ये तो हम छोटा से आंसर एक्सप्लेनेशन करने के लिए लिख सकते हैं इतना, और आप इस समरी को एक्सप्लेन कर दें इक्वल अनइक्वल वाला. अब मैं एग्जांपल के साथ बताने जा रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है. सो look this. This is in your NCERT. So look at this. If GDP of a country is rising, welfare may not rise as consequence. तो जरूरी नहीं है कि आपका जीडीपी राइज होगा तो वेलफेयर भी राइज हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है. नॉट इननेसेसरी, नॉट राइज हो सकता है, राइज ना हो. This is because the rise in GDP may be concentrated in the hands of very few individuals or firms. For rest, income may in fact have fallen. कुछ लोगों के लिए इनकम कम भी हो सकती है. In such a case, the welfare of entire economy cannot be said to have increased. अब एग्जांपल देखिए, मोस्ट एग्जांपल है हमारा कॉन्सेप्ट. Suppose in the year 2000 an imaginary country had 100 individuals. एक 2000 में, ईयर है 2000, उसमें जो नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ पीपल वो 100 है. ठीक है.
एंड ईच अर्निंग ₹10, और उनकी जो इनकम है, हर पर्सन ₹10 कमाता है, तो आपका टोटल जीडीपी कितना हो गया, इसको इससे इंटू कर लेंगे, इट इज 1000. सो देयरफॉर जीडीपी ऑफ अ कंट्री वाज 1000. ये हो गया 1000 यहां पर. ये एग्जांपल आपको क्लियर है यहां तक? अब देखिए, in case 2001, let's suppose the same country had 90 individuals earning 9 each. अब उसी कंट्री में इन द ईयर 2001 90 पीपल तो ₹9 अर्न करते हैं, और रिमेनिंग 10 पीपल ₹20 अर्न करते हैं. ये इनकम है आपकी. तो 90 पीपल ₹9 अर्न करते हैं, तो ये हो गया 810, और ये हो गया आपके पास 200. तो अब आपकी इनकम हो गई 1010. सो वही यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, 10 individuals earning 20 is, suppose there had been no change in the price of goods and services between these two periods. The GDP अब हो गया 1010. Now look at this. Observe that compared to 2000, GDP of 2001 was higher ₹10. अब देखो, इसमें इनकम है 1000, इसमें इनकम है 1010, तो इसमें आपकी इनकम +10 हो गई है. बट दिस हैज हैपेंड when 90% of people of a country have seen a drop in their real income by 10%, that is 10 to 9. अब देखो, जो इनकम 90% लोगों की इनकम जहां पहले 10 थी, अब 9 हो गई है. इसका मतलब हमारा जो इनकम लेवल है इस 9 में आप ये कह सकते हो 10% का फॉल हुआ है. 90% लोगों की इनकम 10% कम हो गई है, एंड 90% पीपल, whereas only 10% have benefited by the rise in their income by 100%. और 10% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 100% राइज हो गई है. देखो, 10% लोग ऐसे हैं. तो केवल इसका मीनिंग ये हुआ कि कुछ थोड़े से लोगों ने ज्यादा पैसा कमा लिया और बहुत सारे लोगों ने कम पैसा कमाया, फिर भी हमारी जीडीपी ज्यादा हो गई. तो इससे क्या हो रहा है, आप इकोनॉमी में इफेक्ट देखिए. 90% ऑफ पीपल आर वर्स ऑफ. अब 90% लोगों की स्थिति खराब हो गई है. दो द जीडीपी ऑफ द कंट्री हैज गॉन अप, जबकि जीडीपी बढ़ गई है. तो इफ वी रिलेट वेलफेयर इंप्रूवमेंट इन द कंट्री टू द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बेटर ऑफ, surely GDP is not an index of welfare index. So I hope you understand the example which is given in your NCERT. बहुत ही सिंपल वे में एग्जाम्पल हमने दे के समझाया एनसीईआरटी के अंदर भी, तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि किस तरह से a very few people if earn more, it doesn't matter that all the people of the society can be live in a better life. अब आप देख रहे हैं कि हमारे आजकल इस कोरोना वायरस के टाइम पे कितने लोग बेचारे परेशान हो गए हैं. लाखों के लाखों लोगों को प्रॉपर वे में रहने को नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, वो रोड्स पे जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो आराम से घर में बैठे हैं. तो इसका मतलब उन अच्छे लोगों के नंबर कम है और ऐसे लोगों के नंबर ज्यादा है जो ज्यादा परेशान है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर देश का पैसा ज्यादा है आपके पास तो आपकी वेल ऑफ भी ज्यादा होगी. So this is the main concept of GDP and distribution. Take the screenshot of this one, all the students. Most important concept है, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको प्रूव कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिए. सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा second is non-monetary exchange. There are many give and take place in the economy that have not observed in terms of money.
आप किसी को कुछ दे रहे हैं, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, बट बदले में कुछ नहीं ले रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट अर्निंग। आप खर्च कर रहे हो, भाई पैसा दे रहे हो किसी को, कुछ भी चीज दे दी आपने, अब पैसा नहीं मिला आपको, तो नेचुरल देश की जीडीपी तो नहीं बढ़ेगी, बट द वेलफेयर ऑफ द पीपल इंक्रीजेस। So these called non-monetary exchange. So how? It refers to goods and services produced produced but not exchanged through money. Goods and services produce तो कर दी, लेकिन आपको बदले में money exchange नहीं हुआ. Many activities in the economy are not calculated in terms of money. For example, domestic services of housewife. अब मान लीजिए घर में कोई हाउसवाइफ है, आपकी मम्मी है, अब घर में सुबह से लेकर शाम तक दिन रात वो अपने मेहनत करती हैं, काम करती हैं घर के अंदर, तो क्या उनको कोई सैलरी मिल रही है? नहीं। अगर वो आप सोचकर देखो कि अगर वो 2 दिन के लिए कहीं बाहर चली जाती हैं और जब आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तब आपको एहसास होता है कि नहीं, कि ये बहुत कितना इंपॉर्टेंट था। तो इसका मतलब आपका वेलफेयर आपकी मम्मी आपको कराने में आपकी हेल्प कर रही है, लेकिन उनकी सैलरी में कोई पार्ट नहीं आ रहा। इस तरह से कोई आपकी हॉबी है, these are not included in GDP but increases welfare। अब आप देखिए राइट नाउ कोरोना वायरस के टाइम के अंदर ऐसे कितने एनजीओ हैं, कितने गुरुद्वारे, कितनी और चीजें हैं जो दिन रात मेहनत करके लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको रहने की जगह दे रहे हैं। तो क्या इससे देश की जीडीपी बढ़ रही है? नहीं, बट द वेलफेयर ऑफ द पीपल श्योर बी इंक्रीजिंग, लोगों का कल्याण हो रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब लेट्स से आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। दिस इज द सेम लैंग्वेज इन एनसीईआरटी, आई एम रीडिंग इट। मैनी एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी आर नॉट एवेल्युएटेड इन मॉनेटरी, मनी में टर्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक सर्विसेज वुमेन परफॉर्म एट होम आर नॉट पेड फॉर। The exchange which take place in informal sector without the help of money are called barter exchange. In barter exchange, goods are directly exchanged against each other. But since money is not being used there, their exchange are not registered as a part of economic activity. In developing countries, many remote regions are underdeveloped. These kinds of exchange do take place, but they are generally not counted in GDPs of these countries. This is a case of underestimation of GDP. Hence, GDP calculated in standard manner may not give us a clear indication of productive activity and well-being of the country. So what is the conclusion of this statement given by the NCERT? So NCERT says that if you are using barter system, बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंज फॉर गुड्स फॉर गुड, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन कर लिया। हमारी इकोनॉमी पहले जब शुरुआत की हम बात करें तो कोई भी बार्टर सिस्टम होते थे। एक किसान ने गेहूं बना लिया, दूसरे ने सब्जी उगा ली, तो क्या हुआ, उसने अपना गेहूं देके उससे सब्जी ले ली, मनी का तो एक्सचेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हमारी जीडीपी तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन लोगों का वेलफेयर तो हो रहा था। इसका मतलब हमारी जीडीपी तो हो रही थी, लेकिन उसका एस्टिमेशन प्रॉपर नहीं था। ऐसे ही बहुत से कंट्री हैं जो एक काम कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर, सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो उसमें नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे तो आपकी जीडीपी राइज नहीं होगी। अब कितने सारे एनजीओ हैं जो काम करते हैं विदाउट एनी मनी, तो जीडीपी अगर उनको, वैसे तो लीगली उनको मिलना चाहिए, लेकिन एनजीओ है तो वो नहीं चार्ज करते हैं। अब हमारे पास तीसरा और लास्ट पॉइंट है इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नलिटी। चलिए बड़ा हो जाएगा। लुक व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटीज, externalities refer to the benefits or harm which are caused in the process of production, but these are neither paid nor penalized.
इसका मीनिंग आपकी जब कोई बाहर का कॉज आपको पॉजिटिव और इफेक्ट और नेगेटिव वे में इफेक्ट करता है तो वो एक्सटर्नलिटीज कहलाती है। एग्जांपल देखिए किस तरह से एक्सटर्नलिटीज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मे बी ब्यूटीफुल पार्क। अगर आपके आसपास कोई ब्यूटीफुल पार्क है तो आपको उससे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, अच्छी हवा मिलेगी आपको, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। अच्छा गार्डन है आपके पास, इन्वायरमेंट अच्छा। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इंक्लूड ट्रैफिक जाम हो गया, या कोई ऐसे है पानी, अब नदी में गंदा पानी मिला दिया है, स्मोक आउट ऑफ चिमनी, फैक्ट्रीज, ये सब आपके नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एग्जांपल है। सिंस जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ दीज एक्सटर्नलिटीज, जीडीपी नॉट ए करेक्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू। अब मान लीजिए सपोज करो आपके पास एक फैक्ट्री है। अब उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन से नेचुरली आपकी जीडीपी तो बढ़ेगी, बट साइड बाय साइड उस फैक्ट्री से स्मोक आ रहा है जिससे आपका आसपास का एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है, जिससे आप बीमार पड़ रहे हैं, तो आपका वेलफेयर तो कम हो गया। तो जीडीपी बढ़ने से जरूरी नहीं है लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा, इससे लोगों का एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो हमारी बनेगी दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आपके पास बढ़िया सा पार्क बन जाए तो आपको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मिलेगी। अब देखिए इसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूं। कुछ ज्यादा ही लिख दिया है एनसीईआरटी में, चलिए फिर भी ओके। तो ये तो सब सेम है, एग्जांपल देखते हैं यहां से, मैंने वही थ्योरी तो लिखी हुई है सिर्फ। Look at the example now. Let us suppose there is an oil refinery which refines crude petroleum and sells it in the market. The output of the refinery is the amount of oil it refines. We can estimate the value of refinery by deducting the value of intermediate goods used by refinery from the value of its output. तो हमने value of output तो sales वाला निकाल के कर लिया। The value add of the refinery will be counted as a part of GDP of the country, but it carrying out the production of refinery may also be polluting the nearby rivers. This may cause harm to people who use the water of the river, hence their well-being will fall. Pollution may also kill fish and other organizations of the river on which fish survive. As a result, fishermen of the river may be losing their livelihood. Such harmful effect that the refinery is inflicting on others for which it will not bear any cost are called externalities. So in this case, GDP is not taking into account such negative externalities. Therefore, if we take GDP as a measure of welfare of economy, we shall be overestimating the actual welfare. This was example of negative externality. This can be case of positive externality. In such cases, GDP will underestimate the actual welfare of the economy. तो एग्जांपल हमारा सेम कंसेप्ट का था, बस थोड़ा सा ज्यादा लेंथी करके इसमें बना दिया गया है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा लीजर एक्टिविटी। तो इसमें अगर आपने कोई खाली टाइम के अंदर काम कर लिया तो आप क्या होगा, उस केस में आपने हॉबी के बेस पे काम कर लिया तो जरूर नहीं है उससे जीडीपी बढ़ेगी, बट आपका वेलफेयर हो सकता है बढ़े। तो जीडीपी डज नॉट कंसीडर leisure contribute to the quality of life. A country could increase its GDP of its people work 12 hours per day, 7 days a week. However, having more product might not mean people are better off if they have no leisure time to enjoy. अब देखिए क्या है, एक व्यक्ति है 8 घंटे काम करता है, उसको 15,000 रुपए महीने मिलते हैं। दूसरा व्यक्ति है जो कि 12 घंटे काम करता है, इसको संडे की छुट्टी भी मिलती है, पहले वाले को संडे ऑफ है इसको नो हॉलिडे, कोई छुट्टी नहीं है, 12 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन इसको 20,000 रुपए मिलते हैं। तो नेचुरली अगर व्यक्ति इतना काम करेंगे तो आपकी जीडीपी तो बढ़ जाएगी,
लेकिन उसको लाइफ एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो उसका वेलफेयर नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड लीजर एक्टिविटी। तो लीजर एक्टिविटी कोई किसी को कितनी मिल रही है उस पर डिपेंड करता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 नंबर में आएगा। कोई आपको 3 पॉइंट बताने होते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हर बच्चे को किसी भी उस पे साइंस में बार बार एग्जाम में आता है। तो अब देखिए, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड अप करा देता हूं। सबसे पहले है एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ वेलफेयर एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो पहला पॉइंट बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब आप इसमें क्या लिखेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। दूसरा पॉइंट था नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। इसमें हमको बताना है कि काफी सारे ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं जिनका मनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, जैसे हाउसवाइफ सर्विसेज, ये आपको बताना है। तीसरा है एक्सटर्नलिटीज। ये होते हैं आपके आउटसाइड फैक्टर्स जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट करते हैं। तो ये आपको 2 तरह की एक्सटर्नलिटीज बतानी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में मैंने बताया था पार्क बनना, और नेगेटिव में मैंने कहा आपसे कोई फैक्ट्री वगैरह बन जाना। और लास्ट है लीजर एक्टिविटीज। ये है आपके पास कितना आपको लाइफ को एंजॉय करने का समय मिल रहा है, ये आपको बताना है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा।